یہ سوال نہیں ہے، یہ انکار کیا جا رہا ہے کہ دور نہیں ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ بخیل اور کنجوس سے نفرت ہوتی ہے، سرزنش ہوتی ہے، سرکوبی ہوتی ہے، اس کی لعنت ملامت ہوتی ہے۔ تو ہے تو سوال، تو اصل جو بات کہنا تھا وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں حل استفہام آیا ہے یبرح البخیل منقوطاً سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو 4 کلمات ہیں یہ عمل کرتے ہیں افعال ناقصہ کا، جیسا کہ یہاں بخیل مرفوع ہے اسم اس کا، منقوطاً خبر منصوب ہے۔ کیوں عمل کیا؟ کیونکہ اس کے پہلے کیا آیا ہے؟ ان 4 میں سے ایک آیا ہے، نہیں نفی، استفہام یا دعا، ٹھیک؟ وَأَمَّا النَّفِي فَلَا يَكُونُ، اچھا اب نفی جو ہوتی ہے تو ادات نفی تو بہت سے ہوتے ہیں نا، ما بھی ہے، لا بھی ہے، لیسا بھی ہے، بہت سے ہیں۔ کون سا ادات نفی آئے گا اس کے پہلے؟ وَأَمَّا النَّفِي فَلَا يَكُونُ بِأَدَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، نفی کے لیے ادات معینہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ما ہی اس کے پہلے آئے گا، جیسے مثال اوپر دی ہے ما زال الانسان ضعیفا، ٹھیک ہے؟ بلکہ نفی اما یکون بالحرف، یا حرف کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کما فی المثال، جیسا کہ آپ نے دیکھا ما حرف نفی ہے، او بفعل، یا نفی فعل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے لیسا ینفک الداء مقیبا، مرض ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے مثلا، تو یہ ینفکو سے پہلے لیسا آیا ہے۔ لیسا جو ہے وہ کیا ہے، حرف ہے کہ فعل ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا فعل جی، فعل ناقص ہے، ماشاءاللہ فعل ناقص ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں کیا نام ہے، نفی جو کی گئی ہے، اور نفی انفکا سے پہلے لائی گئی ہے، وہ کون سی نفی ہے؟ حرف والی نہیں بلکہ فعل والی۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ النَّفِي لَفْظًا وَإِمَّا النَّفِي مَعْنًا وَأَمَّا النَّفِي مَعْنًا فَكَقَوْلِكَ۔ اچھا اب ایک سنیے گا، یہ جو مثالیں دی ہیں نفی کی نا، چاہے اوپر والی مثال میں جو 4 مثالیں دی اس میں سے بعض نفی کی مثال ہے، چاہے یہ والی مثال جو دی ہے لیسا کے ذریعے، یہ نفی وہ ہے جو لفظاً ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے ماں کے ذریعے اور لیسا کے ذریعے نفی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جملے کا ساختار ایسا ہوتا ہے، ڈھانچہ اور اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں نفی پائی جاتی ہے مگر ادات نفی کے بغیر، یا حرف اور لفظ نفی کے بغیر، فعل نفی کے بغیر، نفی کے کلمات استعمال نہیں ہوئے مگر نفی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہی کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ وَكُلُّ ذَلِكَ، اور جس چیز کی بھی نفی ہوتی ہے نا، یہ نفی جو ہوتی ہے کبھی من قبیل، یہ جو ابھی بیان کی گئی، جو ابھی بیان کی گئی نفی، من قبیل نفی لفظان، یہ سب نفی وہ تھی جو لفظاً نفی تھی، جس میں یعنی لیسا آیا تھا، ما آیا تھا، ما اور لیسا کو دیکھ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نفی کی گئی ہے جملے میں۔ وَأَمَّا النَّفِي مَعْنًا، لیکن کبھی کبھی نفی جو ہے وہ معنن بھی ہوتی ہے، فَكَقَوْلِكَ، کا جیسے آپ کا یہ قول، قَلَّا یعنی کم ہے نا، اس پہ ما کو زائد کیا گیا، تو قَلَّمَا یزالو زیدن مسافرن، کیا ہے؟ قَلَّمَا یزالو زیدن، قَلَّمَا یزالو زیدن مسافرن، ایسا نہیں ہے کہ زید کی مسافرت ختم ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، کہاں سے سمجھے آپ؟ زید کی مسافرت کا ختم ہو جانا، زائل ہو جانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہاں سے سمجھ میں آیا؟ نہ یہاں لیسا آیا، نہ ما آیا، نہ اس طریقے کا کچھ اور کلمہ آیا، پھر بھی نفی سمجھ میں آ گئی قلّا فعل کے ذریعے سے۔ قلّا قلیل تو سنا نا آپ نے، کم ہے نا، تو کلمہ کے اندر نفی کا قلّا، قلیل تو سب نے سنا ہوگا، کلمہ نہیں سنا ہوگا ہو سکتا، لیکن قلیل تو سنا ہے، اسی سے قلّا یا قلّو سے بنا ہے کلمہ، قلّا فعل پہ ما کا اضافہ ہے، ما زیادہ، تو یہ کلمہ جو ہے یہاں جو استعمال ہوا ہے کم ہونا، نہ ہونا یا کم ہونا، تو یہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہے نفی کا معنی، حالانکہ یہ معنی نفی کا نہیں ہے، جیسے لیسا کے معنی نہیں کہیں ویسے کلّا کا معنی نہیں کا نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں نہ کا معنی چھپا ہوتا ہے، نہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے قرینے سے۔ تو یہاں فرمایا گیا کلمہ یزالو زید مسافرن، اگر کلمہ کو ہٹا دی تو ہو جائے گا
यज़ालु ज़ैदुन मुसाफिरन, ज़ैद का सफर खत्म हो गया, ज़ैद का सफर खत्म हो गया। लेकिन उस पर अगर आप कल्ला लगा दीजिए तो हो जाएगा कल्लमा यज़ालु ज़ैदुन मुसाफिरन, ज़ैद का सफर खत्म नहीं हुआ, यानी ज़ैद मुसाफिर है अभी भी। ठीक है, ये हो गया कल्लमा का के बाद नफी का मतलब। तो ये आपको समझने में दुश्वारी इसलिए होगी इस नफी की, क्योंकि ये लैसा और मा की तरीके से लफ्जन नफी नहीं है। इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि इस कल्लमा में इसके बावजूद का अदात नफी में से नहीं है, मगर नफी का माना पाया जा रहा है। और नफी का माना क्या है? वही माना, अगर आप इसको हटा कर लैसा रख दीजिए तो जो माना लैसा रखने के बाद निकलेगा वही माना भी निकलेगा। कल्लमा को हटाइए तो क्या होगा? लैसा यज़ालु या मा यज़ालु, मसलन मा यज़ालु ज़ैदुन मुसाफिरन, तो क्या माना होगा? ज़ैद का सफर खत्म नहीं हुआ है, ज़ैद का सफर जारी है ना। वैसी कल्लमा यज़ालु ज़ैदुन मुसाफिरन, यानी ज़ैद का सफर खत्म नहीं हुआ है, ज़ैद का सफर जारी है। ठीक, अब आ जाइए इन्नल इस्मा फी हाज़ल बाबे, इसको आप लोग मुबाहिसा कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। इसको मुबाहिसे के बाद आपकी खिदमत में इस जुमले को अगर आपके लिए नामफ़हूम होगा तो कल फिर मैं इंशाअल्लाह वाज़े कर दूंगा। ठीक है, दोहरा दूंगा। आज चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, लिहाजा मैं फिलहाल इस बात को रोकते हुए आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, कल्ला फेल है। सवाल ये हुआ कल्लमा खुद फेल है? जी, कल्लमा तो नहीं, लेकिन कल्ला फेल है, उसमें माए ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। जैसे कई बार आता है रुब्बमा, आपने सुना होगा, रुब्बा के ऊपर मा आ जाता है सुमा आ जाता है, ऐसी कल्लमा हो। इन्नल इस्मा फी हाज़ल बाब, मेरा कहना यह है कि आप लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग बना के मुबाहिसा जरूर कीजिएगा, सारे दुरूस में, लेकिन कम से कम मबादी में वाजिब है आप लोग ऑनलाइन मुबाहिसा कीजिए। जैसे ऑनलाइन दर्स पढ़ रही हैं, दर्स से ज्यादा जरूरी अपने लिए मुबाहिसा समझिएगा। 3-3 लोगों का, 4-4 लोगों का ग्रुप बनाइए आप लोग, अगर बना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ग्रुप बनाइए और रात में आप लोग आपस में मुबाहिसा जरूर किया कीजिएगा। जी, मुबाहिसे में बहुत सी चीजें हल हो जाती हैं। क्लास में इंसान जितना समझता है उससे ज्यादा मुबाहिसे में समझता है। मुबाहिसे के बाद आप मुझे बताइएगा कल के दर्स में इंशाअल्लाह कि सारी इबारतें आपके लिए आसान हैं कि नहीं, हल हुई कि नहीं, और अगर कहीं पे जरा सा भी शुबा होगा मुझे आप जरूर बताइएगा। मैं जहां पर आपको समझाने की नहीं समझा पाऊंगा वहां खुद मैं कह दूंगा ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन मवादी में मैं समझता हूँ ऐसी जगह शायद कहीं ना आए, तो आप लोग तकल्लुफ ना कीजिएगा, एक बार नहीं 1000 बार बताना पड़े तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए, इन्नल इस्मा फी हाज़ल बाबे यजरी माल फ़िल नाक़िस मजरल फ़ाइल फ़िल इल्तिज़ाम अत-ताख़ीर व इफ़राद अल-आमिल व हलुम मजर्रान। ख्वाहिश में कुनम, यहाँ जो इस्म है ना, काना ज़ैदुन आलिमन, ठीक है, तो ये जो इस्म है, इस इस्म का हुक्म क्या है? फरमा रहे हैं कि जो आपने फाइल का हुक्म पढ़ा है ना, फाइल ज़रबा ज़ैदुन अमरन, तो फाइल में क्या होता है? फाइल आप बाद में लाते हैं, फेल पहले लाते हैं, ज़रबा पहले लाए, ज़ैदुन बाद में आया। ठीक है, और जब फेल जो है वो इसमें जाहिर होता है, ठीक है, फेल सॉरी फाइल, तो आप क्या करते हैं? फेल हमेशा मुफरद रखते हैं। आप कहते हैं ज़रबा रजुलुन, ज़रबा रजुलान, ज़रबा रजालुन, या जा मुस्लिमुन, जा मुस्लिमाने, जा मुस्लिमूना, ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा ज़ैदान, ज़रबा ज़ैदुना। ज़रबा ज़रबा ही रहता है, मुफरद रहता है। वो सारी चीजें यहां भी लागू होंगी। फरमा रहे हैं कि यजरी माल फेल ना कैसे मजरल फाइल, फाइल के मजरा पे जारी किया जाता है फेल नाकिस को। फेल नाकिस का जो इस्म होता है वो जारी मजरा फाइल होता है। मतलब क्या हुआ? जो फाइल का हुक्म है फेल के लिए, वही हुक्म इस्म का है फेल नाकिस के लिए। किस चीज में? फी इल्तिज़ाम ताखीर, कि लाजिम है कि इस्म काना का बाद में आए, जैसे फाइल आता है बाद में। जैसे आप ज़रबा ज़ैदुन कहते हैं, पहले फेल फिर फाइल, उसी तरीके से आप कहेंगे
काना जैदुन, जैदुन काना नहीं, काना जैदुन आलिमन। व इफराद आमिले, और जैसे आप जरबा जैदुन कहते हैं, जरबा जैदान कहते हैं, जरबा जैदुन, वैसे कहीं काना जैदुन, काना जैदान, काना जैदून। काना तस्निया और जमा नहीं होगा, ठीक है। वह हलुम्मा जरन, जर्रन, इसी तरीके से खींचिए आप, ले जाइए आगे। मतलब क्या हुआ, यानी किस अलहादल बवाकी, या किस बवाकी अलहाजा, बाकी को इसी पर आप कयास कीजिए। जो बाकी है काम फेल के हैं, फाइल के हैं, वो यानी फाइल अगर मुअन्नस होगा तो ये क्या लाएंगे, क्या नाम है, फेल क्या लाएंगे। अगर मुअन्नस मसलन तो आप कह देंगे जरबत हिंदुन, इसी तरीके से कानत हिंदुन, है ना। तो जो अहकाम बाकी उसके बताए गए फेल की मुराजा कीजिएगा, वो सारे अहकाम यहाँ भी लागू होंगे। एक एक लाइन और पढ़ लीजिए आप लोग। वयजरी माल खबरे, आपने मुब्तदा खबर पढ़ा है, मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकिरा। जैद और आलिम दो हैं, तो क्या आप आलिमुन को मुब्तदा बना सकती है? नहीं बना सकती ना, जैद को मुब्तदा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मारिफा होता है मुब्तदा, न खबर अगर एक मारिफा एक नकरा, तो जो नकरा वो खबर है, ठीक है। तो जो मुब्तदा और खबर वाले अहकाम थे, वो सारे अहकाम लागू होंगे इसके इस्म और इसके खबर पर भी। देखिए क्या कह रही है, वो यजरी माल खबर मजरल मुब्तदा, जो मुब्तदा का उसकी खबर के, मा खबर ही यानी मुब्तदा, मा खबर ही यानी मुब्तदा, लिखिए जल्दी से, मा खबर ही की मुब्तदा, जो मुब्तदा के साथ उसकी खबर का मसला था, उसी मसले पर जारी किया जाएगा, चलाया जाएगा फेल नाकिस के भी इस्म खबर को। यजरी माल खबरे मजरल मुब्तदा मा खबर ही, फिर किस चीज में, मसलन फिर तारीफ व तनकीर। मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकरा होती है अक्सर, ठीक है। तो यहां भी जो मारिफा होगा वो इस्म बनेगा, जो खबर है वो नकरा। व तक़दीम व ताखीर, पहले मुब्तदा आता है फिर खबर आती है, यहां पे भी पहले इस्म आएगा काना का, फिर खबर आएगी। काना आलिमन जैदुन नहीं कहेंगे, जैसे आलिमुन जैदुन नहीं कह सकते थे आप, जैदुन आलिमुन कहना जरूरी, उसी तरीके से काना आलिमन जैदुन नहीं कहा जा सकता, काना जैदुन आलिमुन होगा, ठीक है। अब उसके बाद फवायद मुझे पढ़ना था मगर वक्त नहीं है, आपका काफी मैंने वक्त ले लिया, देर हो गई है, मुझे भी कहीं जाना है, लिहाजा इंशाअल्लाह बाकी दर्स आइंदा। अभी फिलहाल आप ये बताइए आप लोग कि दर्स आपको समझ में आया, जब भी दर्स पढ़ाया गया है मवादी का? खाए शुक्र, खाए शुक्र। हो, चलिए, अगर किसी को कहीं कहीं पे जरा सा कुछ मुश्किल है तो वो इंशाअल्लाह कल के दर्स मुझे बताएगा, मैं उसको, अच्छा थोड़ा टफ है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए भी टफ आपको थोड़ा सा लगेगा क्योंकि अभी तक जो मैंने 3 दिन पढ़ाया वो दर्स था कि जो अक्सर आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब नया दर्स है, तो नया दर्स उस दर्स के मुकाबले में जो पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा टफ लगेगा। अब उसमें क्या है, जब आप वो ऐसा कर लीजिएगा, जहां पे कोई कंफ्यूजन होगा उसके लिए मुझसे कल सवाल कर लीजिएगा, क्लास शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले सवाल कर लीजिएगा, या क्लास खत्म करने के बाद, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बिल्कुल पानी लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।